अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक यहाँ पे जो है इट इज़ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के दरमियान रिलेशनशिप जो है वो हमें निकालनी है, क्योंकि दोनों का सोर्स सेम है। इफ़ यू हैव अ सोर्स चार्ज समवेयर, तो उन चार्जों की वजह से इर्द गिर्द आप सोच सकते हैं कि वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है जो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस तरह आप बोल सकते हैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो इस फील्ड और पोटेंशियल के दरमियान रिलेशनशिप होनी चाहिए, क्योंकि दोनों का कॉज सेम है विच इज द सोर्स चार्ज। तो इफ वी हैव सोर्स चार्ज समवेयर, they produce in the surrounding space electric field as well as electric potential. Now the source of both these physical quantities is same, therefore they must be related, and they are related, and we have to find that relation. So we'll start with a theorem in theorem of gradients. So we have fundamental theorem of gradients. ग्रेडियंट की एक थ्योरम है कि थ्योरम ऐसी है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन। व्हाट इज दिस? दिस इज ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन एफ। तो इसका जो लाइन इंटीग्रल है बिटवीन पॉइंट से ए एंड बी, it is equal to value of function at the end points f of b minus f of a. So this term tells us the line integral of gradient of a scalar function equals the difference of value of the function at the end points. So this is the theorem in mathematical form. Also we know, now this is a scalar function. Now electric potential V is also a scalar function. So V is a scalar function. Electric potential is a scalar function. Electric field is a vector function. अब चूंकि V स्केलर फंक्शन है तो हम इसको V पर अप्लाई कर सकते हैं। Therefore, for scalar function V, that is electric potential, we can write gradient of electric potential. So line integral of gradient of electric potential between points A and B is equal to value of function, that is electric potential at B, that is VB minus VA. Now this is from this we have got from the fundamental theorem of gradient. Now we know VB minus VA also is equal to, हम अलग इक्वेशन लिख सकते हैं मगर मैं यहाँ ही लिखूंगा, VB minus VA we know is equal to negative, from the definition of potential difference, is equal to negative of line integral of electrostatic field between the 2 points. So potential difference between B and A, VB minus VA is minus E dot dl from A to B. Now this is from definition of potential difference. Now we have this is our left hand side, and this is our right hand side. This is our equation. So we can write now the line integral of gradient of electric potential between 2 points equals negative of line integral of electric field between those 2 points. Now both are line integrals and they are equal. This line integral equals this line integral. Therefore, now I can take this negative inside.
So I can write like this. I can take this negative inside, and I can write, let me here use a eraser first. So I will erase it, and I can now write this negative inside. Now here this gradient of V is the integrand, here minus E is the integrand. Now if integrals are equal, we can compare the integrands. तो अगर हम इंटीग्रेंड्स को कंपेयर करेंगे हमें मिलता है gradient of electric potential is equal to minus E, which is more conveniently written as E equals negative को हम यहाँ लेते हैं negative of gradient of electric potential. So this is the relationship between electrostatic field and electrostatic potential. So electrostatic field or electric field equals, that is, electric field equals the negative of electric potential. So this is the relation. Now in this relation, this is the vector relation between field and potential. Now you know, you'll say V is scalar, E is vector. How are they related? How can we compare scalar and vector? Obviously हम स्केलर को वेक्टर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं. इनफैक्ट यहाँ पर क्या है, E इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल. ये जो E है ये वेक्टर है, और यहाँ जो ये ग्रेडियंट ऑफ V है वो भी वेक्टर है. V तो खाली स्केलर है, पर उसका जो ग्रेडियंट है वो भी वेक्टर है. तो एक इक्वेशन में ऐसा नहीं हो सकता है कि लेफ्ट हैंड साइड में वेक्टर हो और राइट हैंड साइड में स्केलर हो. तो यहाँ भी वेक्टर है, यहाँ भी वेक्टर है, नेगेटिव से डायरेक्शन डिफरेंट होगी. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इक्वल्स नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. Now this is a vector form, but we can write it in component form. So we can write in component form. We can write. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पोटेंशियल है एक्स कंपोनेंट है, सो ई एक्स. अब इसमें वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट है जो एक्स डायरेक्शन में है. सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस dv by dx. ये पार्शियल डेरिवेटिव है, इज अ पार्शियल डेरिवेटिव जिसमें हम दूसरे जो हैं वो v जो है v फंक्शन होगी x y z की, तो इस दौरान हम y और z को कांस्टेंट रखेंगे. इसी तरह जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो y कंपोनेंट है इट विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ y कंपोनेंट ऑफ पोटेंशियल. इस तरह Ez would be minus dv by dz. Then the total field would be, अगर हम एक कंपोनेंट्स फॉर्म में लिखे हैं, मिले हैं किसी तरीके से, v दिया गया है, v के फिर हम e के हम x और y और z कंपोनेंट्स निकालेंगे, फिर हम टोटल फील्ड e भी लिख सकते हैं, which will be exi plus eyj plus ezk. So now we'll move and do some examples. ये examples जो हैं, we have a set of examples here. So ये examples हम करेंगे यहाँ पे. So पहला जो है ये है कि a uniform electric field, तो electric field कितना है 10 न्यूटन पर कूलम exists in vertically downward direction. तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, यानी ऐसे नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है. फाइंड द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज वन गोज अप थ्रू ए हाइट ऑफ 50 सेंटीमीटर. अगर हम नीचे से ऊपर 50 सेंटीमीटर चलते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है. अगर हम 50 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ जाते हैं तो पोटेंशियल कितना चेंज होगा, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक. सो लेट अस क्रिएट सम स्पेस हियर. I think this is sufficient.
तो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे. सो वी हैव हियर इलेक्ट्रिक फील्ड is this. Let us take upward as positive. If up is positive direction, then electric field in y direction, y component of electric field E जो है इसका ये y component है क्योंकि we take vertical direction is y direction. So EY would be minus 10, or Newton per coulomb is the unit. Minus is because up we have taken as positive, so EY is negative, and we have been given if we go to a height of, नीचे से हम ऊपर जाते हैं, so this is point A, this is straight, point B है, तो हम 50 सेंटीमीटर जा रहे हैं. so displacement जो है dx जो है वो है dy जो है इट इज 50 सेंटीमीटर, और ये पॉजिटिव है क्योंकि हम ऊपर जा रहे हैं. दिस इज 0.5 मीटर SI में, इसलिए हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इनफैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वी नो सिंस यहाँ पर सिंस वी नो EY जो है इट इज dV बाई dy. हम पार्शियल लिख सकते हैं, बट यहाँ पर तीनों कंपोनेंट नहीं है, इसलिए वो कंफ्यूजन हमें नहीं होगा. पार्शियल लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ खाली y कंपोनेंट है. सो EY इज dv by dy, बट विद द नेगेटिव हियर, minus dv by dy, which implies dv is equal to minus EY into dy. So putting the values here, minus EY is minus 10 and dy is 0.5 volt. अब यूनिट फाइनल वोल्ट में आएगा. माइनस माइनस विल प्लस. दिस इज 5 by 10, so decimal अगर हटाएंगे it will become 5 by 10, that will cancel. So you have 5 volt as answer. Minus minus is plus. So change of potential is positive. So change of potential is positive, that means there is increase of potential. There is increase of potential as we go from A to B. यानी कि A से B तक जब हम जाएंगे, there is, so A पर कम पोटेंशियल है और B पर ज्यादा पोटेंशियल है, ये कहने का मतलब है. इनफैक्ट आप जनरल में एक बात याद रख सकते हैं कि ये जो हमारे पास है कि E जो है से EY जो है इट इज माइनस dV by dy, इसलिए EX इज माइनस. जो माइनस का मतलब है, माइनस यहां सिग्निफाई करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल. तो इसका मतलब है इस नेगेटिव का E पॉइंट्स in the direction of decreasing V. जिस डायरेक्शन में V डिक्रीज होता है उसी डायरेक्शन में E पॉइंट करता है. मतलब ये है E यहाँ पर नीचे की तरफ है, इसका मतलब है नीचे जो है पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, यानी यहाँ हायर पोटेंशियल है और जितना हम नीचे नीचे जाएंगे पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा. So electric field points in the direction of decreasing potential. So if I go from A to B, I am going towards higher potential. So that is the point here. So let us go to the next question. So next question जो है वो है कि जो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है 20 न्यूटन पर कूलम्ब exists along x axis in space. So x डायरेक्शन में एग्जिस्ट करता है. So I have E is equal to 20 न्यूटन पर कूलम्ब. ये x डायरेक्शन में है, so I can call it as EX and calculate the potential difference VB minus VA where the points are. हमें दो क्वेश्चन है जिसमें दो पार्ट्स हैं. हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम A से B तक जाएंगे फ्रॉम A टू B, और दूसरे पार्ट में A और B के डिफरेंट वैल्यूज हैं.
बी का तो वैसे सेम है 6 और 5, ए डिफरेंट है, पहले में 4 मीटर 2 मीटर और दूसरे में 0 0। तो यहां पर हम पहले कुछ स्पेस क्रिएट करेंगे। I think this will be sufficient. So let us do this now here. पहली बात जो है E कॉमन है, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमें पता है कि E जो है EX जो है इट इज इक्वल टू माइनस dV by dx। अगेन पार्शियल लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वाइजर कंपाउंड यहां नहीं है, जिसका मतलब है कि जो dV है इट विल बी माइनस EX dx। अब हमारे पास दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। सो फर्स्ट पार्ट अगर हम करते हैं तो dx किसके बराबर है? dx इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी। अगर हम ए से बी तक जा रहे हैं तो कितना x चेंज होता है, डिस्प्लेसमेंट कितनी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में है तो हमें देखना है कि हम x डायरेक्शन में कितने गए। y डायरेक्शन इस वक्त रेलेवेंट नहीं है। देखो ये है हमारा पास सिचुएशन। मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं, यहां पे बनाते हैं। पहले पार्ट की डायग्राम है, A है 4 2, say this is 4 and this is 2, this is your point A, 4 meter 2 meter, and it is 6 5, this is point B, it is 6 meter 5 meter। तो अब यहाँ पे जो है dx यानी x कितना मूव किए हैं, x हम इतना मूव किए हैं। देखो ये जो है ये पूरा डिस्प्लेसमेंट है, नेट डिस्प्लेसमेंट dl जिसे हम कहेंगे, मगर वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें यहाँ x, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में है, खाली x डायरेक्शन में है, उसका y डायरेक्शन में कुछ कंपोनेंट नहीं है, यानी ey जो है वो 0 है, इनफैक्ट ez भी 0 है। इसलिए y कितना चेंज हो रहा है, y कितना चेंज हो रहा है इस प्रॉब्लम में वो इंपॉर्टेंट नहीं है, x कितना चेंज हुआ है वो इंपॉर्टेंट। सो dx जो है इट इज x at position B minus x at position A। so that if we put that here the values, so xb is 6 and xa is 4, 6 minus 4 is, it is 2 meters। so if then therefore if we put what we want is dv, we want this thing, this dv we want, therefore this dv is equal to, so dv is equal to minus ex is given, it is 20 and minus ex and dx is 2। SI में ये भी है और ये भी SI में है, इसलिए कुछ, so it is minus 40 volt, 40 क्योंकि यूनिट जो है SI में होगा, that is 40 volt। this is the answer of part 1। if we know part 2 में हम लिखेंगे dx जो है अगेन xb minus xa। अब यहाँ xb भी जो दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट यहाँ पे हमारा, ये है हमारा दूसरा, तो b जो है xb, ये है xb, ये है yb। so xb is 6 और xa is 0, ये वाला। so 6 minus 0 is 6 meter, so this is dx is 6 meter, therefore dv is minus ex which is minus 20 into dx which is 6 is minus 120 volt। तो यहाँ इस केस में चेंज ऑफ पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है vb minus va, so dv is your vb minus va। यह मैं लिखता हूँ dv is equal to this यहाँ पे, which implies dv which is wire, dv is change of potential or potential difference which is vb minus va जो हमें निकालना है। so dv is this which means vb minus va is equal to minus 40 volt और यहाँ भी dv is vb minus, therefore vb minus va it is minus 120 volt। let us come to the next question। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इसमें जो है
हमें क्वेश्चन सिंपल है, v इज इक्वल टू दिस. नाउ v इज अ फंक्शन ऑफ x y z, तीनों कंपोनेंट्स इसमें हैं. फाइंड E810 माइनस 1. सो v के तीन कंपोनेंट्स हैं. v जो है x और y और z तीनों पे डिपेंड करता है, इसलिए जब हम e निकालेंगे तो हमें e के तीनों कंपोनेंट्स निकालेंगे. सो हियर वी राइट ex इज इक्वल टू partial derivative minus dv by dx, that is minus d by dx of 3x cube y z square. इसी तरह ey minus dv by dy minus d by dy of 3x cube y z square. Ez minus dv by dz equals minus d by dz of 3x cube y z square. Let us now do the differentiation, partial differentiation. Minus 3 ऐसे ही रहेगा, x क्यूब का डेरिवेटिव क्योंकि यहाँ x है 3x स्क्वायर होगा. नाउ 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, इट विल बी 9x स्क्वायर. y और z स्क्वायर इस वक्त ऐसे ही रहेंगे क्योंकि कांस्टेंट है. इसी तरह यहाँ पर y के साथ डिफरेंशिएशन करनी है, डी बाई डी वाई ऑफ y इज 1, और पहले माइनस फॉरगेट नहीं करेंगे. डी बाई डी वाई ऑफ y इज 1, वो लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट्स हैं ये तीन. सो वी राइट 3x क्यूब z स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस फॉर्मूला का डी बाई डी z स्क्वायर का डेरिवेटिव 2z होगा, और 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, वो 6, बाकी x क्यूब और y ऐसे ही रहेंगे, और यहाँ z रहेगा क्योंकि 2z स्क्वायर का डेरिवेटिव 2z है, 2 हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया. सो दिस इज ex, ey and ez. what will be therefore e equal to, therefore e vector will be equal to, जो मैंने पहले बोला आपको, exi plus eyj plus ezk. So that is minus 9x square yz square I plus, क्योंकि माइनस के साथ ज़र्ब होगा, इट विल बिकम माइनस. सो माइनस 3x क्यूब z स्क्वायर, x क्यूब z स्क्वायर j, और फिर e z, और माइनस ये बनेगा x क्यूब y z k. तो ये है हमें हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और इसके कंपोनेंट्स हैं, ये इसका x कंपोनेंट है, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट. एनीवे देयरफॉर 8 1 क्या पॉइंट दिया गया है, 1 0 माइनस 1, दैट इज 8x इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू माइनस 1. वी हैव एट दिस पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या निकलेगा, इलेक्ट्रिक वेक्टर क्या बनेगा, इट विल बी. अब इसमें y 0 है, पहले अब देखिए y जहां है वो टर्म खत्म हो जाएगी, तो y 0 है, ये टर्म खत्म होगी और ये टर्म भी खत्म होगी, तो बचती है खाली ये टर्म. इसमें आप x और z का वैल्यू डालेंगे. x का वैल्यू 1 है तो ये 1 क्यूब 1 बनेगा, सो इट विल बी -3, और z का वैल्यू -1 है, -1 का स्क्वायर भी 1 ही है और +1 है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इट विल बी -3 and then unit vector j. So this is the answer of E would be equal to -3j. So this is our. अब इसमें हम एक छोटा सा टॉपिक करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे इनफैक्ट, एंड दैट इज अबाउट, हमें दिखाना है, यहाँ पे हम दिखाएंगे शो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इरोटेशनल. एक क्वेश्चन हमने पिछले एमसीक्यू में डाला था, वहां पर वो इरेलेवेंट था, अब आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं. तो इसमें हमें दिखाना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इरोटेशनल है, यानी इसमें रोटेशन नहीं है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड है, से करंट कैरिंग कंडक्टर जो है उसके इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो ऐसे सर्कल्स बनते हैं. सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, ऐसे ऐसे वो मैग्नेटिक फील्ड आपने बनाया है. So that is rotational field. So B is rotational field.
हमें बताना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसमें रोटेशन नहीं है, दैट इज इट इज इरोटेशनल फील्ड। सो अब हम कैसे दिखाएंगे, हम लिखेंगे हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल है फॉर ए क्लोज्ड पाथ वो कितना है। सो ई डॉट डी एल फॉर ए क्लोज्ड पाथ इज 0, जो हमने इससे पहले किया, विच इज कंजर्वेटिव सिंस दिस इज कंजर्वेटिव नेचर ऑफ E। अब हमें दिखाना है कि एरोटेशनल है। एरोटेशनल मतलब है कि इसमें कर्ल नहीं है। हमने बोला है कि कर्ल जो होता है वेक्टर का, कर्ल ऑफ एनी वेक्टर, कर्ल ऑफ ए मेजर्स कर्लीनेस और रोटेशन, रोटेशन कितना है फील्ड में वो मेजर करता है कर्ल। तो हम कर्ल दिखाएंगे ई का, तो उसके लिए हम यूज करेंगे स्टोक्स थ्योरम। यूजिंग स्टोक्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम हम किसके लिए यूज करेंगे, टू कन्वर्ट, स्टोक्स थ्योरम के जरिए हम क्या करेंगे, यूजिंग स्टोक्स थ्योरम टू कन्वर्ट लाइन इंटीग्रल इनटू सरफेस इंटीग्रल। जो ई का ये लाइन इंटीग्रल है इसको हम सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करेंगे। व्हाट वी नो बाय स्टोक्स थ्योरम के जरिए हमें क्या पता है, वी नो फ्रॉम स्टोक्स थ्योरम, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर हियर। स्टोक्स थ्योरम हमें बताती है लाइन इंटीग्रल of vector field of any is a vector field, if you take its line integral for a closed curve, it is equal to surface integral of curl of that vector। एक अगर हम कर्ल लेंगे, एक वेक्टर बन गया, कर्ल ऑफ ए इज आल्सो वेक्टर, उस वेक्टर का अगर हम सरफेस इंटीग्रल लेंगे डॉट डी एस, ये डॉट है यहाँ पे डॉट, सो that line integral of a vector field is equal to surface integral of curl of that vector field। तो इसको हम यूज करेंगे फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ therefore हम लिखेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लिख सकते हैं E डॉट डी एल। तो यहाँ क्या होता है, ये जो लाइन इंटीग्रल है, ये लाइन इंटीग्रल है, इसको सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं बाय यूजिंग स्टोक्स थ्योरम। तो E के लिए होगा, तो E बनेगा E डॉट डी एल is equal to surface integral of curl of E और फिर ये ds। तो हमने लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट किया। नाउ वी नो दिस E dot dl is equal to 0, so this is equal to 0। Actually E dot dl is equal to 0 for a closed path। Now because E dot dl is equal to this thing, so now we have this is our equation, but because we have combined two things, one is the property of E here which is 0, another is converting line integral into surface integral। Now surface integral of curl of E is 0। अब ये जो surface integral of curl of E 0 है, किसी भी surface के लिए सही है, for any arbitrary surface it is true for any arbitrary surface। तो सरफेस कौन सी है उसका दखल नहीं है, किसी भी सरफेस के लिए ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो कर्ल ऑफ ई है वो 0 है, हेंस कर्ल ऑफ ई इज 0। सो ई का जो कर्ल 0 है, इसमें कर्लीनेस नहीं है, उसका मतलब है therefore E is an irrotational field। सो कंक्लूड में करूंगा, आप दो प्रॉपर्टीज याद रखेंगे ई के, हेंस दो बातों को मैं कंबाइन करूंगा, यहां पे दो बातों को मैं कंबाइन करूंगा, तो हम लिखेंगे हेंस ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है
is conservative field. कंजर्वेटिव फील्ड, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि लाइन इंटीग्रल जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी इज पाथ इंडिपेंडेंट. और दूसरा मतलब इसका यह भी निकलता है कि अगर हम E डॉट डी एल लेंगे फॉर ए क्लोज्ड कर्व, वो जीरो है. तो ये दो बातें जो हैं ये मतलब है जब हम कहते हैं कि E इज ए कंजर्वेटिव फील्ड. ये पहली बात. दूसरी बात जो है वो ये है कि E इज रोटेशनल फील्ड. और इसका मतलब है इट इम्प्लाइज कि इसमें कर्ल नहीं है, इसका कर्ल जो है वो जीरो है. ऑल द बेस्ट. थैंक यू वेरी मच.